आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल ऐन हक़्क़ुन, बुखारी शरीफ। नज़र का लगना हक है। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस वज़रा की जानिब से इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज। टास्क फोर्स हैदराबाद ने जब्त किए 18 लाख रुपए। और हैदराबाद की तरक्की का सहरा सिर्फ कांग्रेस के सर होगा, कारगुजार सदर रियासती कांग्रेस पूनम प्रभाकर का बयान। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। आजमपुरा डिवीजन के टीआरएस उम्मीदवार मोहतरमा आरती बाबूराव की इंतखाबी मुहिम में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डिवीजन पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज, स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी और दीगर ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि टीआरएस पार्टी ही एक हकीकी सेकुलर पार्टी है जो समाज के हर तबके को साथ लेकर चल रही है। उन्होंने अवाम से टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की है। रियासती वज़ीर तलासनी यादव ने आज अमीरपेट डिवीज़न के कुमारबस्ती में टीआरएस की मकामी उम्मीदवार शिशु कुमारी के साथ मिलकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया है। इस मौके पर तलासनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ जिस जबान का इस्तेमाल किया है वो सरासर गलत है। बंडी संजय अपनी हद को भूल रहे हैं। तलासनी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद की आवाम तरक्की को वोट देगी और फिरका परस्ती को शिकस्त देगी। అమీర్పేట్ డివిజన్లో మరి పాదయాత్ర కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ప్రజలు బ్రహ్మరథ పడుతున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మరి హైదరాబాద్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో మున్సిపల్ శాఖ మార్చుడు మరి కేటీఆర్ గారి సారథ్యంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమం మీకు ఎక్కడ పోయినా కనిపిస్తే పొట్టొచ్చినట్టు ప్రజల ముందు. ఈ రోజు ఏంటంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఇంత డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు జరగలేదు. అయితే ఎలక్షన్లలో ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్య వేదిక, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు పోటీ చేయవచ్చు, అదేవిధంగా ఇండిపెండెంట్ కూడా పోటీ చేయవచ్చు. కానీ జనం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే నేను గెలుస్తే ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తా, నేను గెలుస్తేనే ఈ సంక్షేమం ఇస్తా, మీకు అందుబాటులో ఉంటా అనేది ప్రధానమైనటువంటి మూడు అంశాలు. కానీ నిన్న మొన్న జరుగుతున్న పరిణామాలు మీరు చూస్తాం. అసలు సబ్జెక్ట్ అంతా డైవర్ట్ చేసి వ్యక్తిగత దూషణలతో లేనిపోని మరి కల్మషాలు సృష్టించాలనేటువంటి ప్రయత్నం తప్ప జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు వేరే కనిపించలేవు మనకు. రెండోది ఏంటంటే మీడియా అటెన్షన్, పబ్లిక్ అటెన్షన్ అంతా తన వైపుకు తిప్పుకోవాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం తప్ప దానివల్ల ఏం జరిగేది లేదు. రెండోది హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఏ కార్యక్రమం జరగాలన్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో జరిగేటువంటి అంశాలు. రెండోది వాళ్ళు మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా అసలు ఈ హైదరాబాద్కు మీరు ఏమి ఇచ్చినో చెప్పుకోండి, ఇంకో మేము ఇవి ఇచ్చినవి ఇవి చేయబోతున్నాం. అన్ని గాలి మాటలు, అబద్ధాలు. ఇప్పుడు మొన్న
వరద బాధితులు ఎవరైతే వర్షాలలో నీళ్లలో ఇబ్బంది పడ్డటువంటి ప్రజలకు పెద్ద మనసుతోని ముఖ్యమంత్రి గారు భారతదేశ చరిత్రలో ఎప్పుడు చేయని విధంగా 10,000 రూపాయలు సాయం చేశారు. అయితే నిన్న మొన్న వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి మీరు చూస్తున్నారు అవంటే వాళ్ళు ఇచ్చారు అంటే జీవో తెచ్చేయండి మీడియా సమక్షంలో. कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने आज अपने मातहतीन के साथ हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत आने वाले तमाम DRC मराकज़ का दौरा किया है। इस मौके पर इन्होंने अहदेदारों के साथ DRC मराकज़ पर मौजूद अहदेदारों से बात की और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इन्होंने कहा कि राय दहिंदों को किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो, इसलिए महकमा पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किए जा रहे हैं। సిటీలో కొంతమంది రౌడీ షీటర్స్, బ్యాడ్ హ్యాట్స్, హిస్టరీ షీటర్స్ కూడా ఉన్నారు. స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం బైండింగ్ ఓవర్ ఫర్ గుడ్ బిహేవియర్ ఈ సందర్భంలో ఆల్మోస్ట్ 1600 బ్యాడ్ హ్యాట్స్కి బైండింగ్ ఓవర్ ప్రాసెస్ కూడా ఇప్పటివరకు కంప్లీట్ అయింది. మీడియా తరఫు నుంచి పబ్లిక్కి నేను అపీల్ చేస్తున్నాను, పర్టికులర్లీ ఆర్మ్స్ లైసెన్స్ హోల్డర్ ప్రతి ఎలక్షన్ టైంలో డిపాజిట్ ఆఫ్ వెపన్స్ అండ్ ఫైర్ ఆర్మ్స్ ఇది ఒక మ్యాండేటరీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఆల్రెడీ 1500 పైన వెపన్స్కి డిపాజిట్ జరిగింది. దేర్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జెంప్టెడ్ కేటగిరీస్ లైక్ బ్యాంక్ గార్డ్, రిజిస్టర్డ్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ అండ్ సమ్ అదర్ పీపుల్. కొంతమంది ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. దే ఆర్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ బార్డరింగ్ ఏరియాస్, కశ్మీర్లో, నార్త్ ఈస్ట్లో, రాజస్థాన్ బార్డర్లో దే ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జెంప్టెడ్. ఇదే విధంగా అదర్ కేటగిరీస్ పీపుల్ ఆల్సో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఎగ్జెంప్టెడ్. ప్రస్తుతం ఈరోజు ఈ స్క్రూటినీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ నామినేషన్ జరుగుతుంది. తర్వాత రేపు విత్డ్రావల్ ఆఫ్ నామినేషన్కి లాస్ట్ డేట్ ఉంది. రేపే కదా, రేపు లాస్ట్ డే ఉంది. ఆఫ్టర్ దాట్ ద ఫైనల్ లిస్ట్ విల్ బి రెడీ. 2-3 డేస్ తర్వాత ఇది ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది. ప్రతి ప్రింటింగ్ సెంటర్లో కూడా సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి ఆర్మ్డ్ గార్డ్ 24 hours విల్ బి ప్రెజెంట్. అండ్ 3-4 days తర్వాత, and once the list is clear, we will second round of vulnerability mapping. Vulnerability mapping అంటే ఏ ఏరియాలో సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ ఉంది, సెన్సిటివిటీకి కారణం ఏమిటిది, ఇదికి ఎట్లా చెక్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ది మెజర్స్ టు బి టేకెన్ ఫర్ దాట్. ఈ సందర్భంలో లోకల్ పోలీస్, తర్వాత స్పెషల్ బ్రాంచ్, స్టేట్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ लोकल GHMC ऑफिशियल्स। कल शब एक नौजवान जो अपनी कमर में बंदूक रखे हुए पाया गया था, इसने शमशाबाद के रुद्रा कॉलोनी में जमकर हंगामा किया और मकामी आवाम को अपनी बंदूक से धमकाना शुरू किया। वहां मौजूद आवाम को इसकी हरकतों से शुबा हुआ और शमशाबाद पुलिस को इसकी इत्तला दी गई। मकामी आवाम के पूछने पर इस नौजवान ने खुद को CISF का एहलकार बताया, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर इसकी कलाई खुल गई और शमशाबाद पुलिस ने इसके रिवॉल्वर समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इस नौजवान का CISF से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या ड्यूटी है तुम्हारा? CSF का है। CS का है तो अंदर का इधर पूरा शमशाबाद में है भैया। कौन बोले इधर फिर बोल के? अरे मेरा ऑफिसर बोला, मैं डेली फिर रहा हूँ। कौन ऑफिसर का नाम बोलो? ऑफिसर क्या? शंकर। किधर रहते हो? एयरपोर्ट में है भाई। एयरपोर्ट में तो अंदर का को? अरे भैया ये भी एयरपोर्ट में चाहता हूँ, मैं फिर रहा हूँ, डेली फिर रहा हूँ मैं। डेली फिरने को नहीं, अंदर गाँव में को आता बोलो तो। अरे भैया मेरा लोकल है भाई, तू कौन है पूछने को? अरे भैया पुलिस तू वहाँ एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट में पूछो, इधर कौन है पूछने को? भैया सो भाई मैं वो बात नहीं बोल रहा। बोलो तू कौन है, पी के आके कौन है तो पूछने को बोलो मेरे। ठीक है भाई, सॉरी चाबी नहीं दे तुम। फोटो मैं डिलीट करो, फोटो फोन करूँ इधर क्या फिर तू कौन है फिरने को? अरे भैया मेरा ओके।
बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की जानिब से जगह जगह गाड़ियों की तनखी की जा रही है। आज मलेपल्ली के मकाम पर एक कार से 18 लाख रुपए बरामद हुए हैं। यह कार्रवाई हैदराबाद पुलिस टास्क फोर्स ने की है। इस मौके पर काचूवाड़ा इलाके के एक नौजवान नवीन को गिरफ्तार करते हुए हबीबनगर पुलिस के हवाले किया गया है। कोरोना वबा की आमद के बाद हुकूमत की जानिब से गच्चीबौली स्टेडियम में निम्स दवाखाने का क़याम अमल में लाया गया, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहां का अमला भी पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना के मरीजों की खिदमत अंजाम दे रहा है, लेकिन पिछले 3 माह से इस दवाखाने की नर्सों को उनकी माहाना तनख्वाह नहीं दी गई, जिस पर इन नर्सों ने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया। इन नर्सों का कहना है कि वो मौत की परवाह किए बगैर जी जान से कोरोना के मरीजों की देखभाल कर रही हैं, लेकिन उन्हीं को तनख्वाहों से महरूम रखा जा रहा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि इन्हें फौरी तनख्वाहें अदा की जाएं। క్వారంటైన్ పుట్టుకతో రానప్పుడు కరోనా కూడా రాలేదు కదా సార్, అట్లానే మమ్మల్ని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మొత్తం సెలెక్ట్ చేసి తీసుకొని ఇప్పుడు మీరు ఆఫ్టర్ ఆల్ అని మమ్మల్ని మాట్లాడుతున్నారు. మాకు మేము కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి నా ఇంట్లో నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నా పిల్లలు అంతా కరోనాకి అదైపోయినా కానీ మళ్ళీ మేము 15 డేస్ ఇంట్లో ఉండి డ్యూటీ చేస్తుంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ కాంట్రాక్ట్ నర్సులని మమ్మల్ని ఎట్లా అంటారు సార్ మీరు? మాకు క్వారంటైన్ లీవ్స్ కావాలి సార్, సాలరీస్ టైంకి ఇవ్వాలి, అండ్ పెండింగ్లో ఉన్న 3 మంత్స్ సాలరీస్ రావాలి, అండ్ ఇన్సెంటివ్స్ కూడా కావాలి సార్. మాకు ఇది మాత్రం మాకు ఖచ్చితంగా కావాలి. మమ్మల్ని ఒకప్పుడు దేవతల్లాగా చూసిన మీరే ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ మమ్మల్ని ఆఫ్టర్ ఆల్ అని మాట్లాడుతున్నారు? नाज़रीन, यहाँ पर बुलेटिन में वक्त तो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। शख्सियत ऐसी जिन्हें देखकर आप भी मुतासिर होंगे। उनकी राह पर आप भी चलने लगेंगे। जो अपने सफरे हयात में कभी रुके नहीं, जो कभी थके नहीं, वो आगे बढ़ते ही गए और कामयाबी उनके कदम चूमती गई। हम आपसे ऐसे ही शख्सियत से मुलाकात करवाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम एक सफर कामयाबी का। आपके अपने अशरफ ज़ीशान के साथ सिर्फ और सिर्फ सिटी इंडिया टीवी पर। क्या खा रहे मियाँ? महबूब नगर की नंबर 1 कॉस्मिक बेकरी का केक खा रहा हूँ। खाए कभी? तुम अब खा रहे, हम हर साल खाते। अरे ये महबूब नगरी नहीं माँ बाप, पूरे तेलंगाना की नंबर 1 अवार्डेड बेकरी है। मैं भी हर साल न्यू ईयर के मौके पर ये इनका केक ऑर्डर करता हूँ। हाँ देखो, ये साल का भी ऑर्डर कर दिया। आप लोग अभी कॉस्मिक बेक जोन से आज ही ऑर्डर कर लो नए साल का केक। यस, कॉस्मिक बेक जोन का केक, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार। कॉस्मिक बेक जोन, बी साइड HDFC बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। फोन नंबर 08542 245666। सेल नंबर 9985261007 9441554455। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे मजीद अहम खबरों की जानिब।
सईदाबाद डिवीजन में टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के एक दूसरे पर सबकत लेते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रही है। टीआरएस उम्मीदवार संगिरेड्डी स्वर्णलता रेड्डी ने कहा कि इस बार इनकी कामयाबी यकीनी है। उन्होंने बताया कि हल्के के मुसलमान टीआरएस की शानदार कारकर्दगी के पेश नज़र टीआरएस ही को अपना एतमाद देंगे, जो उनकी कामयाबी की जमानत है। ఈరోజు మనం క్యాంపెయినింగ్ స్టార్ట్ చేసినాము। మరి ఇంటింటికి వెళ్తుంటే కూడా మరి అందరు కూడా స్పందన చాలా బాగుంది। మీకే ఓటు వేస్తాం, మిమ్మల్ని గెలిపిస్తామని అందరు కూడా మనకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది। మరి మనం చేసిన అభివృద్ధి పనులు, మన పార్టీ చేసిన అభివృద్ధి పనులు మనల్ని గెలిపిస్తాయని మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటున్నాము। మరి కేసీఆర్ కేటీఆర్ గారి మాట నిలబెట్టాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను। అంతేకాకుండా మనం రోడ్లు, సివరేజ్, మరి వాటర్ కనెక్షన్స్, పార్కులు, మరి మనం కూడా 2 బస్తీ దవాఖానాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। క్రాంతినగర్లో ఒక బస్తీ దవాఖానా, మరి జాకిర్ హుస్సేన్ కాలనీలో ఇంకో బస్తీ దవాఖానా ఏర్పాటు చేయడం। ఇది ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా బస్తీ దవాఖానాలు తెచ్చి మరి పేద ప్రజలకు మరి ఆరోగ్యం కాపాడాలనే ఉద్దేశం। ఇంకా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోయినప్పుడు చిన్న జ్వరం వచ్చినా సరే 1000 ఖర్చులు అవుతుంది। అంత డబ్బు పెట్టలేని కూడా మనం పూర్తి చేసుకుంటాం। సివరేజ్, డ్రైనేజ్, మళ్ళీ ఇంకొకటి వాటర్ కనెక్షన్, కొన్ని రోడ్లు మనకు ఉన్నాయి, కొన్ని వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది, అది కూడా మనం సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది। వాల్స్ వేసి ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కూడా మనం గెలిచిన తర్వాత పూర్తిగా మన సైదాబాద్ డివిజన్లో ఏమీ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చేసి ఇది కూడా బంగారు తెలంగాణలో బంగారు సైదాబాద్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం। रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास कौर ने आज हल्का असम्बली मुशीराबाद के बल्दी हल्का एडिकमेंट में जीएचएमसी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में हिस्सा लिया है। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि वज़ीर मौसूफ को इस हल्के का इंतखाबी इंचार्ज भी बनाया गया है। उन्होंने आज मकामी कम्युनिटी हॉल में मकामी आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि पिछले 70 साल में किसी हुकूमत ने कभी भी रियासत के तमाम तबक़ात की एकसा तरक्की के लिए काम नहीं किया, जो काम टीआरएस हुकूमत ने किया है। तमाम पसमानदा तबक़ात बशमूल बीसी तबक़ात को हमारी हुकूमत ने तरक्की के एकसा मौक़े फ़राहम किए हैं। इसके अलावा आज जीएचएमसी में जो तरक्की देखी जा रही है वो टीआरएस हुकूमत ही के मरहून मिन्नत है। इस मौके पर उम्मीदवार के अलावा टीआरएस के सीनियर कायदीन भी वहाँ मौजूद थे। तर्जुमान एमबीटी अब्दुल्ला खान खालिद ने इस बार अपनी अहलिया अस्मा खातून को अपने साबिक़ा बल्दी हल्का इंतखाब आज़मपुरा से मुजव्वज़ा बल्दी इंतखाब में मैदान में उतारा है। तमाम क़यास आराइयों के दरमियान इन्होंने इंतखाबात में मुकाबले का फ़ैसला कर लिया है। हमारे नुमाइंदे ज़फ़र खान ने इनसे इस खुसूस में खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए इस पर डालते हैं एक खुसूसी नज़र। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान, सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम क्या ख्याल है मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एमबीटी स्पोक्समैन अमजदुल्ला खान साहब के साथ। हमसे कुछ उनसे सवालात करते हैं, कुछ हमसे बात भी करना है कि इस बार आप इलेक्शन में उतरे हैं, आपके वाइफ आ रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद लेकर हैं, आपको क्या पूरी उम्मीद लेकर आप उतरे हैं यहाँ पर? पहले देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं सिटी इंडिया से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया और हमको मौका दिया अपने इज़हार ख्याल करने का। देखिए, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन स्टार्ट हो गया है, आज दूसरा दिन है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसा जल्दबाजी का इलेक्शन तो कहीं भी नहीं हुआ। अभी तक जो है जो इलेक्शन करवाने का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टाफ है, जैसा रिटर्निंग ऑफिसर्स, AROs है, वो लोग भी अभी रेडी नहीं है, ना उनको ट्रेनिंग दी गई। वोटर लिस्ट का आप जब देखें तो वोटर लिस्ट का तो ऐसा सत्यानाशा है कि अभी मैं जब डिस्कशन कर रहा था, आप लोग सुन रहे थे कि एक एक पेज पे 5-5, 6-6 मल्टीपल बोगस डुप्लीकेट वोट्स है। बोगस वोटिंग का एक माफिया ही है ये लोग। जो है जैसा हैदराबाद में इलेक्शन हो रहा तो डिस्ट्रिक्ट के वोटर्स को यहाँ एनरोल कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्शन कहीं दूसरी जगह इलेक्शन हो रहा तो ये हैदराबाद से लेके जाके बोगसिंग कर रहे हैं। बड़ा माफिया है। हम जो है इसकी शिकायत 99 से लेके 2019 तक भी हमने दिया, अदालत को भी कई मरतबा गए। अदालत से ये हो रहा कि बोगस वोट को निकाला नहीं जा रहा है। हमको वोटर लिस्ट मिलती बिल्कुल इलेक्शन से 1 महीना पहले। हम जब उसका सर्वे करें तो उसमें कई नाम बोगस निकलते। फिर हम क्या करते कि इनको दरख्वास्त देते कि आप निकालो बोल के। ये लोग निकालते नहीं। ये लोग निकालने के बाद क्या होता, हम अदालत को जाते। अदालत बोलता है भाई इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, हम कुछ नहीं बोल सकते।
इलेक्शन के बाद में लाके वो वोट हम निकाल दिए बोल के बल्दिया वाले डालते, लेकिन वो वोट तो कास्ट हो जा रहा हो। और अदालत की तरफ से भी कोई एक बड़े जिम्मेदार, चाहे बल्दिया कमिश्नर रहो या जोनल कमिश्नर रहो या इलेक्शन का जो भी स्टाफ है, उसको सस्पेंड, क्रिमिनल केस नहीं बुक किया जाता। ये सबसे बड़ी शिकायत है। कांग्रेस पार्टी ही हकीकत में हैदराबाद की मामार है, क्योंकि आज हैदराबाद में जो भी तरक्की है वो सिर्फ कांग्रेस ही की देन है। इन ख्यालात का इजहार कारगुजार सदर रियासती कांग्रेस कमेटी पूनम प्रभाकर ने हमारे एडिटर सिटी इंडिया टीवी से गांधी भवन में हुई खुसूसी मुलाकात में की है। उन्होंने कहा कि आवाम इन इंतखाबात में मजलिस और बीजेपी की फ़िरका परस्ती और टीआरएस के झूठे वादों को मुस्तरद करते हुए कांग्रेस का हाथ मजबूत करेगी। कारगुजार सदर कांग्रेस कमेटी रियासती कांग्रेस कमेटी जनाब पूनम प्रभाकर साहब साबिक रुकन पार्लियामेंट करीमनगर मेरे साथ मौजूद हैं, जो जीएचएमसी इंतखाबात में दोबारा कांग्रेस को बरसदार लाने के लिए और एक बेहतर मुजाहरा इस इलेक्शन में देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस इंतखाबात में उनको लाएअमल क्या रहेगा। बोलिए, आप ही बोलना है। देखो, आप तो देख रहे जो तमाशा हो रहे हैं, बंडी संजय का तमाशा और असदुद्दीन ओवैसी का तमाशा, नरेंद्र मोदी जैसा हिलाना है चलाना वैसा चल रहे दोनों। वो क्या बोलना है, वो क्या बोलना, नड्डा या अमित शाह डिसाइड करके भेजता है। असदुद्दीन ओवैसी क्या बोलना है और बंडी संजय क्या बोलना, बीच में पब्लिक को ख़त्म करने के लिए लगा हुआ है। कल संजय ने स्टेटमेंट दिया, हमारे साथ सिर्फ हमको खिलाफ एमआईएम है, तो वोट के लिए दोनों लोग राजनीति करना शुरू हो गए। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हैदराबाद का डेवलपमेंट के बारे में इलेक्शन होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए हैदराबाद में क्या किया 6 साल में, केंद्र सरकार ने क्या किया, प्रदेश सरकार ने क्या किया, पानी में डूबे तो गरीब लोगों के लिए क्या मदद मिला, कोरोना में क्या पीएम केयर सीएम केयर फंड से करोड़ों रुपए वसूल किए, किसी का मास्क तक मिले। पुकड़ में बोले आप चिकन को, आपका तबीयत अच्छा रहेगा, आप घंटी जलाओ और दीप जलाओ, आपका तबीयत अच्छा रहेगा, मगर कोई कुछ काम हुआ? और जब पानी में डूब गए, ना मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री कोई आया ना इधर, हैदराबाद पूरा डूब गए। ऐसी हालत में हम यही पूछना चाहते हैं हैदराबाद लोगों को, पहले जो आज अपन इस्तेमाल कर रहे हैं आंखों के सामने, मेट्रो घूम रहे, ट्रेन है, फ्लाइट है, फ्लाईओवर्स है, पार्क है, सब चीज़ है, तो सिर्फ कांग्रेस की वजह है। कांग्रेस की शान बढ़ाना है तो फिर एक बार कांग्रेस को जिताओ। यहाँ लोकल वो लोग एक मसलों के ऊपर लड़ाई नहीं है, ये लोग का हिंदुत्व मुस्लिम सब्जेक्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा मत घूमना, वही मेरा विज्ञप्ति है। सब 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस का बेहतर गुजारा रहा, तो कांग्रेस ने जीएचएमसी पर कब्जा किया, मजलिस की तायद उस वक्त कांग्रेस को हासिल थी। लेकिन 2016 के जो इलेक्शन में जीएचएमसी के, उसमें कांग्रेस का मुजाहरा बहुत कमज़ोर रहा, सिर्फ एक कारपोरेटर की सीट हासिल हुई। अब भी ये सुना जा रहा है कि आज कुछ कांग्रेस के मजबूत कायदीन जो कुछ एमआईएम में और कुछ टीआरएस में शामिल होने वाले हैं, तो आपका क्या लाएमल रहेगा कि जो आपके कायदीन इधर उधर जा रहे हैं उनको रोकने के लिए आप क्या करें? देखो, 2014 टीआरएस तेलंगाना प्रदेश सरकार बनने के बाद टीआरएस का सरकार आए, तो उसके बाद तुरंत बहुत बड़े बड़े लंबी मीठी बात सुनाई थी, 1 लाख घर देंगे, 2016 की बात है, मगर एक घर भी नहीं मिला, आपको भी मालूम है। तो ऐसी बातों में उन लोगों की झूठी बात समझने के बाद आज कौन वोट डालना है, और हमारी पार्टी वाले जाने की बात कह रहे हैं आप। देखो, हमारी पार्टी में सर्वे सत्यनारायण सस्पेंडेड है, बंडा कार्तिका रेड्डी सस्पेंडेड है, ऐसे लोगों को लेके हमारा पार्टी से लिए बोल के बीजेपी का लोग बोलने में क्या मतलब है? तो ऐसा चीज़ों में मत आइए, पब्लिक को भटकाने में। हमारा जो भी लीडर है, स्क्रैप है, गोडाउन में है, उसको ले जाके फिर पार्टी में आप बड़ा लीडर को लिए, उसी लिए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाए। अरे आपका पार्टी में ताकत वाला है तो उसको टिकट देने की कोशिश करो। हमारा पार्टी वाला को ले जाके आप पार्टी में शामिल करके उसको नेता बना के, क्या आपके पास ताकत नहीं है? हमारा ताकत की ज़रूरत है। हमारा पार्टी लोगों के ऊपर क्यों नज़र लगाए? नया एक रोज पैसे मांगने वाला सुबह सुबह निकले जैसा हर लीडर, बीजेपी का लीडर, हमारा लीडर का घर के पीछे सामने जाके भीख मांगे जैसा सुबह सुबह क्या पार्टी में ज्वाइन करने का क्या तरीका बनाते, ये सही ठीक नहीं है। अगर आपके पार्टी के पास सही ताकत है, आपकी सभी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका पार्टी में रहे सो लोगों को टिकट देने की कोशिश करो, ये नाटक बंद करो। सब एक आखिरी सवाल साहब मैं आपसे, क्योंकि आप एक ज़मीनी सतह के कारकुन हैं, आप बहुत अच्छा आपका रिकॉर्ड है, आपने जो करीमनगर में सबसे पहले ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए एक रिकॉर्ड कायम किया था बहसीत एमपी, और मैं समझता हूं कि आप अपनी जो कारकर्दगी है उस बार जीएचएमसी में भी उसको रूबे में लाते हुए कांग्रेस के बेहतर मुजाहिदे के लिए काम करेंगे। एक मैसेज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक मैसेज या हैदराबाद की आवाम को इस इलेक्शन में आप क्या देना चाहते हैं? हैदराबाद आवाम को सलाम करते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप बड़े लोगों से, बुजुर्ग लोगों से, नौजवान भाई पूछो हैदराबाद का इतिहास क्या है। हैदराबाद इतिहास ऐसा है, हैदराबाद को आज बनाया हुआ है भाई कांग्रेस के हाथ से।
इधर पानी पीने का भी नहीं रहता था, गोदावरी से और कृष्णा से पानी लाके दिया है कांग्रेस पार्टी। मेट्रो भी हो, एयरपोर्ट भी हो, फ्लाईओवर्स भी हो, आज पार्क्स भी हो, आज इतने बड़े दरिया नौकरियां कर रहे, IT पार्क भी हो, जो भी हुआ कांग्रेस के जमाना हुआ। अभी पूछो 6 साल में यहाँ प्रदेश सरकार TRS या केंद्र सरकार BJP हैदराबाद के लिए कुछ करा है तो उसके ऊपर वोट डाले तो कोई हमको एतराज़ नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ दोनों पार्टियों से और आपका हैदराबाद वोटरों से, क्या यहाँ कुछ हुआ? तो इसलिए कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ बात करते हुए दोनों के ऊपर आप मारो, मैं रोता हूँ, मैं मारूँ, आप रोए जैसा नाटक करो, यही दोनों का चालबाजी चल रहा है। इसलिए इस बार जो आप लोगों की तकलीफ को पूछने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी को मदद दो, कांग्रेस पार्टी जिताओ। हैदराबाद का शान बढ़ाने की जो मौका था वो एक बार कांग्रेस पार्टी को फिर एक बार देने के लिए हमारा विनती है। तो ये थे कारगुजार सदर रियासती कांग्रेस पार्टी परम प्रभाकर साहब। आज भी वो पूरे जोशीले अंदाज में हमारे साथ बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि वो GHMC इंतखाब में कांग्रेस कामयाबी के लिए उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, उनकी जमात भी उनके साथ आगे बढ़ेगी। हमारी नेक तमन्नाएं कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। लेकिन ये भी यहाँ कहना ज़रूरी है कि जो 2016 में कांग्रेस पार्टी का मुजाहरा हुआ, क्या इस बार भी कांग्रेस उसी तरह का मुजाहरा करती है, फिर कांग्रेस कुछ आगे बढ़कर कुछ नशीतें हासिल करती है, या फिर GHMC पर इख्तियार हासिल करने की जो कामयाबी हासिल करती है, ये देखने की बात है। और यहाँ की आवाम किस तरह कांग्रेस को मदद करेगी, ये GHMC इंतखाबात के बाद पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद जमील और मेरे माविन मोहम्मद जफ़र खान के साथ मैं मोहम्मद तकी हुसैन, सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शहर गुरमिटकल में आज 11:30 बजे इंतजामी कमेटी मरठवाड़ी पटवाए गिरा मक्का मस्जिद की तामीर नौ के लिए संग बुनियाद रखा गया है, जिसमें हज़रत सैयद शाह अहमद हुसैनी साहब क़िबला बारगाह सामुद्दीन बरहना रहमतुल्लाह अलैह, गुलबर्गा शरीफ हज़रत मौलाना सैयद अनवरुल हसन साहब अलबसरी, हाफिज़ नवाज़ खान निज़ामी, क़ादरी मौलवी अब्दुर्रहीम गुलजार के हाथों संग बुनियाद रखी गई। फातिहा खानी और शीरीनी तक़सीम अमल में लाई गई है। मस्जिद की तामीर की तकमील के लिए दुआएं की गई हैं। इस मौके पर इंतज़ामी कमेटी की जानिब से मस्जिद की तामीर के लिए अहले खैर हजरात से शहर गुरमिटकल और शहर व बैरूनी अहले खैर हजरात से भी दर्दमांदाना अपील की गई है। इस मौके पर अब्दुल नबी हवालदार ख्वाजा हुसैन, अब्दुल रहमान, अब्दुल रशीद, अब्दुल हमीद, जाहिद हुसैन, मोइनुद्दीन, ताजुद्दीन, मोहम्मद अली समी व दीगर हजरात वहाँ पर मौजूद थे। गुरमिटकल से हमारे नुमाइंदे साजिद खान की ये रिपोर्ट। जिले संगारेड्डी के शहर ज़हीराबाद में आज कांग्रेस की जानिब से किसानों की बाक़ियात की अदायगी का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त एहतजाज किया गया है। शक्कर की फैक्ट्री इंतज़ामिया की जानिब से किसानों की फसल की रकम अदा न किए जाने की वजह से किसान काफ़ी बदहाली का शिकार है। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने बरसर इख्तिदार जमात के वज़रा और अराकीन असम्बली पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो किसानों के मसाइल की अनदेखी कर रहे हैं। ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। ज़हीराबाद నియోజకవర్గంలో అతిపెద్ద సాగునీటి పంట అంటే చెరుకు, కానీ రైతులు ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమేటిక్లో ఉన్నారు. దాని ఏదైతే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము రైతు ప్రభుత్వము రైతులకు మేలు చేస్తామంటున్నారు, కానీ ఎక్కడ కూడా దానికి దాఖలు లేదు. ज़हीराबाद నియోజకవర్గంలో తీసుకుంటే గత 2019వ సంవత్సరంలో తీసుకుంటే డిసెంబర్ 3వ తారీఖు స్టార్ట్ అయ్యి ఫిబ్రవరి 13వ తారీఖు ఎండ్ అయింది. సుమారు 35 కోట్లు రైతులకు చెల్లించాల్సి ఉంది. అందులో ఏంటంటే 12,70,00,000 ఇప్పటి వరకు కూడా పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడున్న మంత్రి కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ ఎమ్మెల్సీ కానీ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ రైతులకు బకాయిలు ఇప్పించట్లో ఫెయిల్ అయినరు. మొన్న మంత్రి అన్న ఇప్పిస్తాడనుకొని తీసుకున్నాము. మొన్న 3-4వ తారీఖు రోజు మంత్రి మీటింగ్ పెట్టి నవంబరు 11వ తారీఖు వరకు 5 కోట్లు, ఆ తర్వాత 18వ తారీఖు మొత్తం బిల్లులు చెల్లించేటట్టు చేస్తాము అని అన్నారు. కానీ 21 తారీఖు ఈరోజు వచ్చిన వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా బిల్లులు చెల్లించిన దాఖలు లేవు. కాబట్టి రైతు మంత్రి ఈరోజు మాట తప్పారు.
ఒక చిన్న యాజమాన్యం మీద మీ అజమాయిషి నడుస్తలేదంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ఎట్లా నడిపిస్తారో ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది. ఆ తర్వాత తీసుకుందంటే మొన్న ఫ్లడ్స్ వచ్చిన తర్వాత చెరుకు అంతా పడిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళు అయోమయ పరిస్థితులు ఉన్నారు రైతులందరూ. ఆ తర్వాత ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ అవుతుందో స్టార్ట్ కాదో అన్న అయోమయం ఉన్నారు కాబట్టి అంట నీ నియోజకవర్గంలో రైతులకు బిల్లులు ఇప్పి చేతగానోళ్ళు మీరు పోయి ఆడ బయట ఏమో చెప్తారు అంటే ఓట్లు ఎట్లా వస్తాయో ఆలోచించాల్సింది హైదరాబాద్ ప్రజలు కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. జైరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రతి చెరుకు రైతు ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము రైతుల వ్యతిరేక ప్రభుత్వము, వీళ్ళకి సమయం వచ్చినప్పుడు तगिन बुद्धि चप्पाल्सिंदिगा डिमांड। नाज़रीन, बुलेटिन के अख्तिताम से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। टीआरएस वज़रा की जानिब से इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज। टास्क फोर्स हैदराबाद ने जब्त किए 18 लाख रुपए। और हैदराबाद की तरक्की का सहरा सिर्फ कांग्रेस के सर होगा, कारगुजार सदर रियासती कांग्रेस पूनम प्रभाकर का बयान। आने दक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।